Now, in our previous class, we did start with this our second chapter, that is writing and the city life. And in this chapter, we actually started with certain important details about the Mesopotamian civilization. And when I'm talking about the Mesopotamian civilization, we said that we are studying this because this was the first civilization which saw you can say, a lot of developmental phases. Specifically, if we talk about the changes, those were writing and the city life. Now, along with this, we did a lot of things in the previous class regarding uh, yes, regarding the geography of Mesopotamia and how, where is it actually located? What are the physical divisions and what are the main rivers that flow through it? And how does it affect the life of Mesopotamia? Where we said though the southern part of Mesopotamia is very dry, still the agriculture is very good. Why? Because it gets the water regularly from the Euphrates and the Tigris River that comes from the northern portions. Now we move on to the next topic, and our next topic is the movements of goods into cities. Now, when we talk about urbanization, urbanization does not only mean that there is a lot of development in the field of agriculture, but also when it is developed in other areas, like if we say trade and written work, we already know, we'll study it in detail, and when their administration is very good, and along with that, when we see that they are developing in all other phases. So among this, we need to understand that the first and the most important thing after that helped in urbanization was the agriculture produce, but along with this, it was the trade that it was having with its adjacent area. So to be more specific, अपने को ये समझने की जरूरत है कि उनके जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता था इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, उसको वो लोग क्या करते थे, ट्रेड करते थे फ्रॉम द एरियाज लाइक टर्की एंड ईरान एंड अक्रॉस द गल्फ। और वो वहां से क्या लाते थे, वुड, कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड, शेल और बहुत सारे टाइप के डिफरेंट डिफरेंट स्टोन। वाई? क्योंकि ये सारी जो चीजें थी ना, ये इनकी खुद के एरिया में अवेलेबल नहीं थी। Now, at that such a old, we can say thousands and thousands of years ago, अगर हम देखें कि उस टाइम भी वो लोग कितना अच्छा ट्रेड कर रहे थे, in which they were going too far off to trade in stuff like wood, copper, tin, silver, etc. That means they had really developed in other sectors also. नाउ इफ आई एम सेइंग कि वो लोग ट्रेड करते थे, यू मे आस्क कि वो लोग कैसे करते थे ट्रेड। तो फर्स्ट, ऐसे तो है नहीं कि उस टाइम भाई अपने पास बड़े बड़े ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अवेलेबल थी, कि बड़े बड़े ट्रक्स अवेलेबल थे, या मे बी देयर वर एयर रूट और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो ऑब्वियसली इफ वी टॉक अकॉर्डिंग टू देयर टाइम, हम देखेंगे उनके पास दो ही ऑप्शन थे। एक तो एनिमल्स, यानी कार्ट के थ्रू, जैसे घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, दिस काइंड ऑफ स्टफ। बट इसमें एक अपने को प्रॉब्लम है कि अगर अपने कोई भी सामान जो है वो कैरी कर रहे हैं ऑन एनिमल्स, तो क्या होगा कि ऑब्वियसली थोड़ी थोड़ी देर बाद एनिमल को रेस्ट चाहिए, बीच में उनको फॉडर देना पड़ेगा, और एकदम इतनी फार ऑफ तक जाएंगे तो ऑब्वियसली दे विल बी टायर्ड। तो जो सेकेंड ऑप्शन था विच वॉज वाटरवे, अपने को पता ही है ऑल अराउंड दी वर्ल्ड वन ऑफ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज वाटरवे, or they had ample amount of facility available if they wanted to do some kind of water transport. इनके पास river boats थी, they had developed lot of you can say types of boats through which they could easily carry out their trade. रिवर बोट्स थी, इनके पास बार्जेस थी, बार्जेस जो होती है दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ बोट, ऐसे नीचे से थोड़ी फ्लैट होती है और आगे से और पीछे से इट इज अ बिट शार्प नोकेली जैसे होती है। तो इसमें ये लोग करते थे बहुत सारे ग्रेन्स को लोड, और उसके बाद क्या करते थे, देवर अगेन एज आई से देवर इंटेलिजेंट पीपल। वाई? वो कोशिश करते थे जिस जगह पे जिस साइड पे उनको जाना है, जब वहां उस साइड की विंड चल रही होती थी,
तब वो लोग वहां से ट्रेडिंग करना या वहां से वो अपना रूट स्टार्ट करते थे। एंड देन ऑब्वियसली, और ऐसा तो है नहीं कि एट दैट टाइम द बोट्स नीडेड लॉट ऑफ फ्यूल और थिंग्स ऑफ दैट सॉर्ट। तो ऑब्वियसली वो लोग क्या करते थे कि वो लोग रिवर को आराम से जिस साइड जिस डायरेक्शन में हवा जा रही है उस डायरेक्शन में लेके जाते थे, और मे बी थोड़ा बहुत जो मैनुअल हेल्प चाहिए होती थी वो हो जाती थी। तो वेरी वेरी इजीली दे कुड ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट देयर ओन गुड्स, जहाँ पे वो लोग ग्रेन्स दे के बाकी जो चीजें हैं जो उनके एरिया में अवेलेबल नहीं थे क्योंकि वो मिनरल में डेफिशिएंट थे, तो वो आराम से क्या कर लेते थे, उसका ट्रेड कर लेते थे। एंड लेटर ऑन हम देखेंगे कि इनका ये जो रूट है ये वर्ल्ड रूट के जैसे फेमस हो गया था, मतलब विच वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट ऑफ दैट टाइम, वेयर people from different areas used to come and do the trade in these through these routes. Acha, this is what we have said about the goods. How did the goods move into the cities, or as we say, what are the kind of transportation that they used to do so that they can do their trade. अब जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज है जो इस सिविलाइजेशन में हुई थी वो थी डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। जैसे ही हमने ये चैप्टर शुरू किया, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो हम बात कर रहे हैं जिसकी बार बार, वो है राइटिंग। नाउ एज यू कैन सी द नेम ऑफ द चैप्टर इटसेल्फ इज राइटिंग एंड द सिटी लाइफ। तो राइटिंग एक्चुअली इज रियली रियली इम्पोर्टेंट बिकॉज इससे पहले यू वी हैव नो एविडेंसेस ऑफ राइटिंग। नेक्स्ट ऑफ ऑल, राइटिंग के लिए यू नीड लॉट ऑफ इंटेलिजेंस लेवल। कि अपने लिए बहुत छोटी सी बात है कि क्या हुआ, राइटिंग है तो क्या हुआ, बट अपने को ऐसे सोचना चाहिए। यू जस्ट इमेजिन इफ आई आस्क यू टू राइट समथिंग ऐसे ऑन एनीथिंग, तो व्हाट डू यू थिंक? फर्स्ट यू थिंक इन योर ब्रेन, पहले यू आर थिंकिंग कि मुझे क्या लिखना चाहिए, देन यू पुट इट on the paper with your pen, मतलब now you know how to move your pen. If you want to write the word movement, you know कि m कैसे लिखना है, कहाँ पे कर्व्स आएंगे, उसके बाद m o आएगा, v आएगा, किस तरीके से चीजें आएगी। that means it requires lot of intelligence level and coordination, as we say in science कि coordination चाहिए between your mind and your hand। इसलिए हम बोलते हैं राइटिंग स्किल इज रियली रियली important and this shows how developed these people were। इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो थी यूनिफॉर्म। नाउ यूनिफॉर्म होती क्या है एक्चुअली में, ये क्या करते थे, शार्प एजेस के छोटे से वुड पीसेस या ट्विग्स ले लेते थे वी शेप के, और उससे क्या करते थे, क्ले के ऊपर कुछ निशान बनाते थे, कुछ सिंबल्स बनाते थे। दिस इज हाउ दे स्टार्टेड राइटिंग। तो सबसे पहले एज यू कैन क्लियरली सी कि जो इसको जो यूनिफॉर्म है इसका मतलब है वेज शेप, और वेज शेप के वो एक फॉर्मूला जैसे मतलब एक स्पेसिफिक साइन बना देते थे टू डिपिक्ट सर्टेन काइंड ऑफ वर्ड। नाउ व्हेन वी से इसकी भी है ना एक स्पेशल टेक्निक होती थी। टेक्निक क्या होती थी, एक तो एवरीबडी कुड नॉट राइट, ओनली देयर वर स्पेशल पीपल हु कुड राइट, ये होते थे स्क्राइब्स। स्क्राइब्स कौन होते हैं? स्क्राइब्स वो पीपल होते हैं हु वर ट्रेन्ड इन राइटिंग। अपने आगे जब राइटिंग में और डिटेल में आएंगे तब एक दो चीज और पढ़ेंगे, बट अभी बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इट, लेट मी जस्ट टेल यू। यू नो कि जब हम लिखते हैं तो वी हैव सर्टेन लेटर्स, जैसे इंग्लिश में जब हम बात करते हैं तो हम हमारे पास लेटर्स है ए बी सी डी ई एफ जी, और हिंदी में हम बोल सकते हैं आ ई क ख ग घ। तो ये जो है ये होते हैं अपने लेटर्स। उसी तरीके से इफ यू नो कि कुछ लोग कैसे, जब जैसे स्मॉल किड्स व्हेन दे आर टॉट टू फॉर्म वर्ड्स तो उनको फोनेटिक्स सिखाते हैं। फोनेटिक्स क्या होता है कि पी का साउंड है प, और उसके बाद देन वी सी कि ए का साउंड है ए, जबकि ई का साउंड है ए, और एन का साउंड है न। तो अगर मैं बोलूं पी ए एन तो वो हो जाएगा पैन, और अगर मैं बोलूं पी ई एन तो वो हो जाएगा पेन। So after this is what I actually wanted to tell you कि जो इनकी डेवलपमेंट थी, it was actually lot if we talk in the type of writing that they learn.
अब इसके बाद वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज जो इनकी जो इनिशियली जब इन्होंने स्टार्ट की थी क्या चीज कि लिखना, तो ये सिर्फ ट्रेड पर्पसेस के लिए की थी इन्होंने। ट्रेड पर्पसेस के लिए क्या क्यों की थी, हमें जो इनिशियली जो क्ले टैबलेट्स मिले हैं उसमें ये चीज बताई गई है कि जैसे कुछ सिंबल्स बनाए हुए हैं कि उन्होंने ऑक्स बना दिया और उसके ऊपर एक नंबर का सिंबल लगा दिया। जैसे बोट्स ट्रांसपोर्ट करनी है या ट्रेड करनी है तो उन्होंने कुछ बोट्स बना दी और कुछ उन्होंने सिंबल्स बना लिए, जिसका मतलब ये है कि भाई इस एरिया में इतने सारे बोट्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट हुए हैं। तो इनिशियली जब मेसोपोटामिया में शुरू हुई थी ये राइटिंग, तो ये सिर्फ सिंबल्स के थ्रू थी और ये सिर्फ ट्रेड पर्पसेस के लिए थी। फिर धीरे धीरे ये जो लैंग्वेज है ये चेंज हुई। नाउ एज आई वाज टेलिंग यू कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। जो हम लोग साइंस यूज करते हैं टू एक्सप्रेस सर्टन वर्ड सर्टन लेटर्स, उसको हम बोल देते हैं स्क्रिप्ट। और लैंग्वेज होती है जो हमारी भाषा है, एक्सप्रेस करने का तरीका। जैसे यू मे बी नोइंग कि हिंदी जो है और संस्कृत है, दोनों की जो लिपि है, लिपि मतलब स्क्रिप्ट जो है वो क्या है, देवनागरी है। पर यही यही स्क्रिप्ट यूज करके अगर मुझे सेंटेंस बोलना हो, मुझे कोई भाषा लैंग्वेज यूज करनी है, तो हिंदी में अगर मैं बोलूं कि मैं घर जा रही हूँ, तो वही संस्कृत में होगा अहम ग्रहम गच्छामि। पर जो इसमें लेटर्स यूज हुए हैं वो सेम है, पर बोलने का तरीका, एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है। अब यही चीज क्या हुई थी वहां पे मेसोपोटामिया में, लैंग्वेज जो है धीरे धीरे चेंज हुई थी, पूरी चेंज नहीं हुई थी। अच्छा, अपने एक नॉर्मल सी बात करते हैं, अपने सब इधर इंडिया में सपोज वी इफ यू गो टू दिल्ली, you listen to few people speaking Hindi, then you go to Haryana and you listen to some people speaking Hindi, फिर राजस्थान में आओगे, उधर भी कुछ लोग हिंदी बोल रहे हैं, होगी हिंदी, पर उनके हिंदी में थोड़ी थोड़ी क्या होगी, वेरिएशंस होगी, क्योंकि वो उसमें अपने लैंग्वेज को थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, तो वो थोड़ा डायलेक्ट चेंज हो जाता है, थोड़ा सा वर्नैक्युलर उसमें टच आ जाता है। वैसे ही इनकी स्टार्टिंग यूनिफॉर्म लैंग्वेज जो थी वो धीरे धीरे जैसे जैसे एम्पायर चेंज हुए वैसे वैसे लैंग्वेज भी थोड़ी थोड़ी चेंज हो गई। तो सबसे पहली वाली जो थी हमारी वो थी सुमेरियन लैंग्वेज, उसके बाद आई अपनी अकेडियन लैंग्वेज, और बाद में फिर वो धीरे धीरे और ज्यादा डेवलप होती रही। तो बेसिकली राइटिंग से अपने यही मतलब है कि इनिशियली राइटिंग सिर्फ और सिर्फ अपनी इसलिए हुई थी क्योंकि उनको ये करना था कि भाई हमें सिर्फ ट्रेड से रिलेटेड चीजों के बारे में लिखना है। पर बाद में जब तक सुमेरियन वाली लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ तब तक वो लोग जो है दे स्टार्टेड डूइंग अदर काइंड्स ऑफ थिंग्स आल्सो, जैसे कि राइटिंग डिक्शनरीज, और सपोज किसी ने लैंड खरीदे हैं, एक आदमी ने दूसरे आदमी से कोई लैंड खरीदा है या मे बी कोई बिल्डिंग खरीदी है, तो वो क्या करते थे, वो उस चीज को भी डॉक्यूमेंट करते थे इन क्ले टैबलेट्स, और ताकि उस चीज का प्रॉपर प्रूफ रहे। उसके बाद क्या है, वो जैसे सपोज राजा है, उसने कुछ चेंजेस किए हैं, राजा ने कुछ चेंजेस करने के बाद क्या किया है, वो चाहता है कि सारे उसके जितने भी लोग हैं उनको ये सारी बातें पता चल जाए, तो अगेन वो भी क्या होता था, क्ले टैबलेट्स में लिखा जाता था। So if we want to make it into if we compile it, we just want to understand कि मेसोपोटामिया जो है वो राइटिंग को किस किस चीजों के लिए यूज करते थे। सबसे पहली चीज तो अपने को पता ही है, ट्रेड के रिकॉर्ड के लिए। नेक्स्ट है कि अगर जैसे लैंड ट्रांसफर करना है, देयर हैज बीन सम ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू द बाइंग एंड द सेलिंग ऑफ द लैंड और मे बी सम बिल्डिंग और सो ऑन, उसको भी वैलिडेट करने के लिए। वैलिडेट क्या है, मैंने if I have bought some house from you and the other day you say कि नहीं मैंने तो बेचा ही नहीं घर, तो what proof do I have? तो उसके लिए लीगल वैलिडिटी होनी चाहिए। लीगल वैलिडिटी कैसे होगी, अगर मेरे पास कोई रिटर्न रिकॉर्ड होगा। तो वो क्ले टैबलेट पे लिखते थे कि ए पर्सन ने बी पर्सन को लैंड बेच दिया है इतने, वॉट एवर इज द मनी और वॉट एवर वॉज द एक्सचेंज दैट वॉज डन, तो वो जो है वो क्ले टैबलेट के थ्रू होता था। उसके बाद वो डिक्शनरीज भी करने लग गए थे। उसके इसके अलावा जो राजा है, वॉट एवर ही यूज टू डू, वॉट एवर एक्शन ही यूज टू डू, सपोज कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है, कोई बहुत बड़ा चेंज लाना चाहता है वो इन द टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, या और कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है रिगार्डिंग द लॉज एंड द डिक्रीज,
then what will happen, it will be clearly written down now. तो बार बार इस चीज को क्यों फोकस करें कि स्टार्टिंग में जब वो डेवलप हुई थी, कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं वो एक नेसेसिटी थी, क्योंकि ये रिकॉर्ड रखना कि भाई किसने इतने सारे बोट्स किसको बेचे, उसके बदले में सपोज 100 kgs ऑफ ग्रेन दिए हैं, तो ये और सब एक दो लोगों के बीच में नहीं है, ट्रांजैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो उसकी रिकॉर्ड रखने के लिए इनिशियली उस राइटिंग जो है वो डेवलप हुई थी और रिकॉर्ड जो है वो डेवलप हुए थे। और उसके बाद बस धीरे धीरे ऑब्वियसली जब लिखना आ ही गया तो उसके बाकी यूजेस होने लग गए, द यूजेस दैट वी हैव जस्ट गॉन थ्रू नाउ। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, अपने पास बिकॉज वी आर हैविंग द written record, that is why we come to know about many more things. अपने को देयर इज वन इम्पॉर्टेंट रूलर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द अर्लीस्ट रूलर ऑफ उरुक, उनके बारे में बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं फ्रॉम दीज क्ले, यू कैन से द क्ले टैबलेट्स एंड आल्सो फ्रॉम मेनी ऑफ द यू कैन से स्कल्पचर जो इनसे रिलेटेड बने हुए हैं। नाउ ये जो है ना, he was a very great ruler and very important, और उरुक जो सिटी है उस टाइम वो बहुत इंपॉर्टेंट सिटी बन गया था एंड वाज डेवलप्ड इन एवरी विच वे। इसीलिए बहुत बार ये जो क्ले की टैबलेट्स है इसमें उरुक को सिर्फ दी सिटी के नाम से लिखा हुआ है। हम लोग दी या किसी से भी पहले दी कब लगाते हैं, जब वो बहुत स्पेशल हो या बहुत इम्पोर्टेंट हो, तो वैसे इन लोगों ने बोल रखा है दी सिटी। दी सिटी कौन सा है, उरुक। तो उरुक का वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लीडर था वो था एनमेकर। नाउ ये जो है, व्हाई इज ही सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज ही इट इज कंसिडर्ड कि है ना, ही वाज द वन हु वाज somehow related to the starting of trade or making it more important. कैसे? It is considered कि he wanted lapis lazuli and many precious metals because he wanted to beautify one city temple, यानी कि एक city temple को वो बहुत अच्छा बनाना चाहता था, उसमें precious stones, metals और उन चीजों से बनाना चाहता था जो उरुक में अवेलेबल नहीं थी। So at that time it was considered there was a far off land known as Arata, वहां पे ऐसा माना जाता था कि वहां पे ये सारी चीजें अवेलेबल है। So what did he do? He sent one of his messenger, और अपने messenger को बोला कि go to the Arata and ask the chief of Arata कि हमें है ना आपकी कंट्री से लेपिस लिजूली और कुछ मेटल्स चाहिए, और इसके बिहाफ में हम आपको बहुत सारे ग्रेन्स और ये सारी चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दिस मैसेंजर, इनकी एपिक में लिखा हुआ है, ही वेंट through the night while looking at the stars. Obviously at that time ऐसे proper इनके पास वो तो थे नहीं डायरेक्शंस के लिए, पर इनको रूट पता थी। तो रात को वो पूरा just by looking at the nature, तारों की साइड देख के ही started climbing the mountains. During the day he used to just look at the sun and moon, so on. अब now after this what happened कि they have mentioned कि बहुत बार ऐसे हुआ कि जो when he used to be on the mountain range, तो जो people of Susa जो कि सिटी है वो उसको सल्यूट करते थे कि such a great man, what is he doing, is he is coming here and then मतलब climbing so many mountains and so on. Now along with this they are saying कि तो वो ऊपर से देखता था उनको and they used to look like tiny mice. टाइनी माइस का यहाँ पे ये मतलब है कि जब भी कोई एक बहुत ऊपर, सपोज somebody is actually standing at a very height, तो ऑब्वियसली बाकी उसको बहुत छोटे छोटे अपेयर होते हैं। तो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि उसको टाइनी माइस की तरफ अपियर हो रहे थे। उसके बाद इट इज सेड कि उससे 5 माउंटेन्स क्लाइम किए, 6 माउंटेन्स क्लाइम किए, 7 माउंटेन्स क्लाइम किए। Then he finally reached to the chief of Arata. Chief of Arata को उसने बोला कि भाई our king is asking for lapis lazuli and silver from your area. If you can provide us, we'll obviously give you grains and everything in return. But the chief said no. The chief did not agree. इसने बोला नहीं, हमें नहीं exchange करने। So he again, the messenger went back to Uruk again. फिर राजा ने वापस उसको भेजा,
कभी राजा ने उसको थ्रेट्स के साथ भेजा कि बोलना आप चुपचाप दे दो अदरवाइज हम लोग वॉर करेंगे, कभी उसने रिक्वेस्ट के साथ किया, कभी उसने कुछ चीजें प्रॉमिस की कि स्पेशल भेजेंगे जो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है हम आपके लिए भेजेंगे, but the chief of Arata did not accept. अब this messenger was so tired, इतनी बुरी तरीके से थक गया था ये कि ये ना मैसेजेस को ही फंबल अप कर रहा था, कंफ्यूज हो रहा था, जो चीज बोलनी थी। बहुत बार क्या होता है व्हेन वी आर वेरी टायर्ड तो हम बोलते हैं अपने ये स्लिप ऑफ टंग टंग हो जाता है, बात कुछ और बोलनी होती है, बोल और कुछ देते हैं वैसे, बिकॉज वो बेचारा ही हैड टू गो सो फार ऑफ एंड देन कम बैक अगेन, ही वाज रियली टायर्ड। तो बहुत बार वो जो गलत मैसेज देने लग गया, ऐसा लग रहा था वो भूलने लग गया क्या बोलना है क्या नहीं। देन एंड मार्कर सेट कि है ना कुछ तो करना पड़ेगा। देन व्हाट डिड ही डू, ही टुक द क्ले टैबलेट इन हिज हैंड, और जो उसको लिखना था चीफ ऑफ अराटा वाले को मैसेज कि भाई आप हमें लेपिस लजुली दो और आप हमें सिल्वर दो, इसके बदले में हम आपको ये देंगे, ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, अगर आप हमारे साथ ये ट्रेड एक्सचेंज करोगे तो आपके लिए फायदा होगा एंड दिस एंड दैट जो भी है, और अगर नहीं किया तो हम दूसरे तरीके भी अपना सकते हैं, वॉट एवर ही रोट एंड ही सेंट इट। तो अब जब फाइनली ये मैसेंजर पहुंचा चीफ ऑफ अराटा के पास और इसने ये अराटा को जब ये क्ले का पीस दिया, तो दिस अराटा वाज रियली रियली एंग्री। एक तो पहले जो क्योंकि जो सिंबल्स थे वो थोड़े नेल्स जैसे थे क्योंकि वेजेस शेप में बनाए हुए थे, तो और ऊपर से ही मतलब ही समहाउ थॉट कि है ना हो सकता है अपनी सुप्रीमेसी दिखा रहे हैं या ये क्या करने का तरीका है। नाउ अब एज वी हैव डन अर्लियर ऑल्सो कि जो इंग्लिश में लिखते हैं ना इसका एग्जैक्ट मीनिंग वही नहीं होता है जो हम समझते हैं। इसका एग्जैक्ट मीनिंग बहुत बार ये होता है कि बहुत ज्यादा कोई चीज को एम्फसाइज करना है या उसको बहुत ज्यादा वैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बहुत बड़ी बात हो गई, उस टाइप से एक्सप्रेस कर रहे हैं। पर ये जो पूरा इंसिडेंट है इससे अपने को ये एक चीज समझ जरूर आ गई है कि है ना उस टाइम पे जो ट्रेड है उसको भी इनिशिएट या उसको स्टार्ट और उसको कंट्रोल और उसको मैनेज कौन करते थे, किंग्स ही करते थे। यानी जो रूलर्स होते थे वो ही मैसेज, वो ही क्या करते थे, सारे ट्रेड के ऊपर कंट्रोल करते थे और अकॉर्डिंगली ही ट्रेड होता था और वो सारी इंफॉर्मेशन कैसे कहाँ भेजनी है, ये सारी चीजें जो है these were everything was actually under the king itself। और इससे अपने को अगेन यही प्रूव कर रहे हैं कि बार बार जो एक पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं कि एक जो पर्टिकुलर रूलर है वो अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए भी करता था कि देखो हमारे तो राइटिंग है, एंड लेटर ऑन तो सब जगह आई थी पर इनिशियली जहां से स्टार्ट हुआ था दे वांटेड टू शो दैट वी आर सुप्रीम बिकॉज वी नो हाउ टू राइट। तो दिस एक्चुअली ये जो हमने पूरा सुमेरियन का एपिक की पूरी स्टोरी पढ़ी है इससे अपने एकदम लिटरल मीनिंग में नहीं लेके बात इससे निकालने की ये है कि जो ट्रेड है वो अभी टोटली किसके कंट्रोल में था, जो रूलर होता था उसी के कंट्रोल में था। एंड ये तो स्टार्टिंग फेज थी, इसके बाद जो ट्रेड है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे होगा, हाई स्केल पे होगा और इट विल बी कैरिड आउट इन लार्ज अमाउंट। और ऑब्वियसली उसके बाद जो राजा है वो थोड़ा थोड़ा काम किसी किसी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा एंड डिपेंडिंग अपॉन वॉट एवर द सिचुएशन है। अब नाउ जब हम बार बार राइटिंग की बात कर रहे हैं तो राइटिंग का थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। एज जब राइटिंग वाला टॉपिक हमने शुरू किया था तभी मैंने बताया था कि इनकी जो बेसिक तरीका था लिखने का वो था यूनिफॉर्म साइज, जिससे वो सिलेबल्स करते थे इंस्टेड ऑफ सिंगल कॉन्सोनेंट और वॉवल। जैसे आई टोल्ड यू कि पेन लिखते हैं तो भाई पी का साइन होता है, पी का जो फोनेटिक साउंड होता है वो प होता है, ई का ए होता है, एन का न होता है तो पेन हो जाता है, पैन का पी ए एन तो पैन हो जाता है। और वॉवल्स का अपने को पता है ए का क्या साउंड है, ई का क्या साउंड है। बट ये लोग जो है ये सिलेबल्स यूज करते थे। यू कैन ब्रेक अप एनी वर्ड, जैसे कि सपोज मेसोपोटामिया है तो वो मेसोपोटामिया को मेसोपोटामिया एम ई एस ऐसे नहीं स्पेल करते थे, उन लोगों ने बहुत सारे एक हर वर्ड को तोड़ रखा था टुकड़ों में, जैसे मैस और या फिर मेसोपोटामिया। जनरली जो हर टुकड़ा होता था उसके बीच में एक वॉवल होता ही होता था।
किसी भी वर्ड को आप ब्रेक कर सकते हो, जैसे ये कॉन्सोनेंट है तो इसको कॉन सॉन एंट। अब जो इन लोगों ने ये जो वर्ड्स को तोड़ रखा है, अब जब इनको नया वर्ड बनाता था ना तो वो यही यूज करते थे। जैसे कि सपोज कॉन्सोनेंट है, इसको मैंने बोला कॉन सॉ और नेंट, इसी को अगर उनको कॉन्स्टेंट बनाना है तो वो कॉन्स और टेंट कर देंगे। इस टाइप से वो क्या करते थे, उन लोगों ने बहुत सारे हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ सिंबल्स बना रखे थे सिलेबल्स के लिए, और इनमें से कुछ जो है वो तो बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट होते थे। इसीलिए इट वाज कंसिडर्ड दैट इट इज रियली रियली टफ फॉर अ पर्सन टू नो हाउ टू राइट। इसीलिए उस समय सबको राइटिंग नहीं आती थी, और जो राइटिंग होती थी इट वाज कंसिडर्ड ओनली वर्क ऑफ स्किल्ड क्राफ्ट पीपल। एंड एज आई टोल्ड यू कि राइटिंग इज कंसिडर्ड अ वेरी इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट। क्यों? कि यू नीड टू हैव कोऑर्डिनेशन बिटवीन योर ब्रेन एंड हैंड, यानी मैं जो सोच रही हूँ वो मैं लिख पा रही हूँ। इसके लिए क्या है, मेरा ब्रेन और मेरे हैंड के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मेरी थिंकिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए कि मुझे ये लिखना है, और मेरे हाथ अकॉर्डिंगली चलने चाहिए कि जो मैं सोच रही हूँ वो मैं एक्सप्रेस करता हूँ। तो इट वाज कंसिडर्ड सो इम्पोर्टेंट, और इट वाज सो डिफिकल्ट कि जो स्क्राइब्स है उनकी एक स्पेशल पोजीशन होती थी, and it was considered a really great achievement if somebody knows how to read and write. Now अगर हम literacy की बात करें, obviously everybody could not read and write it because it was very complex and very difficult. Now if suppose there is a king who knows how to read and write, तो उनको लगता था हमें तो बहुत बड़ी चीज आती है, और इसके लिए अपने को क्या करना चाहिए, बूस्ट करना चाहिए, भाई मुझे राइटिंग आती है, देखो एक राजा होते हुए मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, आई हैव सो मच ऑफ वर्क एंड स्टिल आई नो हाउ टू रीड एंड राइट। तो वो लोग अपने लिए स्पेशल इंस्क्रिप्शंस लिखवाते थे। क्या इंस्क्रिप्शंस? कि इसमें मेरी तारीफें लिखो कि आई नो हाउ टू रीड एंड राइट, एंड और इसमें ये लिखो कि दिस किंग इज सो इंटेलिजेंट, ही नोज हाउ टू रीड, ही नोज हाउ टू राइट, और इतना डिफिकल्ट काम है, ये तो सिर्फ इंटेलिजेंट लोग ही कर सकते हैं, और ये राजा ऐसा है, ही सच अ ग्रेट पर्सन दैट ही स्टिल कैन रीड एंड राइट। और इसके अलावा और क्या था कि इनका ना एक तरीका भी था लिखने का, टू गिव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू द किंग, बिकॉज अभी तक किंग वॉज कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन इन द मेसोपोटामियन एरिया। तो अगर आपको कोई ऑफिशियल मैसेज लिखना था तो ऐसे लिखा जाता था, टू माय लॉर्ड ए, जैसे अपने भाई इसमें बोल देते हैं, इफ वी टॉक ऑफ आवर इंडिया तो हम बोलते थे भाई महाराजा अधिराज के सामने ये बात हम बोलना चाहते हैं, या फिर दे यूज टू बो डाउन, भाई सिर झुका के बोलना। तो ये लोग भी क्या लिखते थे, टू माय लॉर्ड, और दस सेज योर सर्वेंट, मतलब आपका सेवक ये बोल रहा है कि भाई आपने जो काम दिया था वो हमने पूरा कर दिया। इसका मतलब क्या है कि सिमिलरली दे आर जस्ट वांटिंग टू से कि ये जो चीजें हैं, इट इज कंसिडर्ड दैट द किंग शुड बी पेड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। अलॉन्ग विद दिस फाइनली ये और चीज है कि एक मिथिकल पोएम है जिसमें ये बोलते हैं कि भाई जो चीजें लिखी हुई है वो स्कॉलर्स को डिस्कस करनी चाहिए, स्कॉलर्स को डिस्कस करनी चाहिए, और इसके अलावा जो एल्डर्स है उनको अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और जो फादर्स है उनको अपने बेटों को समझाना चाहिए, और हर तरीके के लोगों को सुननी चाहिए। मतलब कोई भी चीज है, कोई भी पोयम है तो उसका भी एक तरीका था, अगर इट सपोज इट हैज द बिलीव जो मेसोपोटामियन चाहते थे कि ऐसा हो, तो ये अकॉर्डिंगली जो राइटिंग है वो इतनी ज्यादा डेवलप हो गई थी कि अब पोयम मिथिकल चीजें ये सारी लिखी जाने लग गई थी। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जहाँ पे क्या हो गया था कि ये बोल दिया गया था कि भाई बिकॉज राइटिंग इज डेवलप, द किंग इज इंटेलिजेंट, दिस एंड दैट, एंड फाइनली बस अपने इसको ऐसे ही समराइज कर सकते हैं कि राइटिंग क्लियरली प्रूव्स दैट दे वर having lot of developmental skills, or they were developing in other fields also. So next on we'll do in the next class. So now if you have any problem you can go ahead.